अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखना, इस पार्ट पे वर्किंग कर लेते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज the circles with center C1 and C2 have equal radii of length r. The line C1 C2 is the radius of both circles. ठीक है. And the two circles intersect at A and B. Given that the perimeter of the shaded region is 4 pi centimeters, find the value of R. In the first part, पहले चलो इसकी writing कर लेते हैं. Now, talking about the center and the radius value, अगर आप इसकी बात करें, देखें, center to the radius जो value बन रही है, that is equal to R. And then obviously center to this value A is also equal to R. ये भी R बन रही है value, दोनों values R हो गई हैं. अच्छा, now keeping this in mind and then talking about the other values also, आप ये notice करें, लेकिन ये सब सेम होंगी values, ये सब R है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि the center of C2, C2 का ये सेंटर है और इसकी circumference passes through the center one of the other circle. And the same goes for center 2 or circle 2. Center 1 या circle 1 की जो circumference है, it passes through circle 2. इसका मतलब ये हो गया कि this value is also R, this is also R, this is also R. So all the values are R. अच्छा, how does this help us? This tells us that we are talking about equilateral triangles. Equilateral triangles का मतलब, I understand that if this is pi by 3, then this is also pi by 3. It says given that the perimeter of the shaded region is 4 pi. 4 pi means, आप देखें इसको थोड़ा सा हमें ना इस स्टाइल में देखना पड़ेगा ताकि जरा इजीली आपको समझ आ जाए. मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से. Now that we have all these values, now what they're telling us is that the perimeter is 4 pi. मतलब ये और जो पीछे वाली लेंथ है ये मिला के, so technically this is equal to 2 pi. Is that correct? If this arc length and the arc length behind this is all equal to 4 pi, वो आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ये येलो पार्ट और ये ब्लू पार्ट मिला लें तो ये 4 पाई बन जाएगा. तो इफ बिटवीन दिस येलो एंड ब्लू पार्ट जो राइट हैंड साइड है वो तो 2 पाई होनी चाहिए. ये भी 2 पाई, वो भी 2 पाई. अब इस पूरी वैल्यू को जरा आप थोड़ी देर के लिए ट्रीट करें एज ए सेक्टर with a radius of r and with an angle of 60 plus 60 which is equal to 120. सही बात है. ठीक है, ये है सिचुएशन. तो मैं इसको क्या करूंगा, जो पेरीमीटर की वो बात कर रहे हैं, तो आई हाईलाइटेड 2 पाई. सो आई नो दैट द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा. और वो कह रहे हैं गिवन दैट द, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3. हाउ डू आई नो दैट? पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. वी गेट द वैल्यू ऑफ आर एज 3. दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. R is equals to 3. Then it says find the exact area of the shaded region. Now they are asking us for the exact area of the shaded region. देखें, exact area of the shaded region निकालने के लिए थोड़ा सा हमें improvise करना पड़ेगा. और वो improvisation ये होगी कि I will be calculating, जैसे मैंने अभी ये value निकाली है, I will calculate the area of this yellow part. I will calculate the area of the yellow part completely. मैं बता देता हूँ लिख के, देखें. Something like this. Basically मैं इसका yellow part का area calculate करूंगा. Then I will calculate the area of the
मैं वैल्यू इस तरह से निकालूंगा। आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ द येलो पार्ट, जो सॉरी येलो पार्ट तो नहीं है, पूरा बेसिकली पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा। सेक्टर के एरिया में से आप ये वाला एरिया रिमूव करेंगे, द ब्लू पार्ट। जब आप ये रिमूव करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस एरिया, right? If from a sector, yeah, and then you just multiply this by two. That's one way to do it. कुछ लोग इसको ट्राइंगल्स में अलग अलग पीसेस में डिवाइड करके भी सॉल्व करते हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे भी करना चाहें। बट माय सजेशन इज कि we will should be calculating the area of the segment. So segment area calculation होनी चाहिए area of the sector minus the area of triangle. Okay, so area of the sector minus area of the triangle. सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? हाफ आर स्क्वायर, वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ आर, थीटा इज 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ 3 स्क्वायर अगेन, बट ओनली दिस टाइम इट विल बी साइन 2 पाई बाई 3। ये तो दोनों एरियाज कैलकुलेट करें, आंसर बताएं क्या हो रहा है। 3 by 9. That's for the triangle area. Yeah, half AB sine theta. So the first part will be 3 pi minus the second part, that is 1 upon 2, 3 square into sine 2 pi by 3. Sine 2 pi by 3 will be root 3 upon 2. I'm just trying to calculate the exact area. वो कह रहे हैं ना exact. इसका मतलब ये है कि we need to avoid using a calculator. Sine 2 pi by 3 will be the same as sine pi by 3, which gives the answer as root 3 upon 2. So it's 3 pi minus 9 root 3 upon 4. ये एरिया आ रहा है एक शेडेड पार्ट का। We need the area of both. Centimeter square. So they wanted the answer in this format, हम बस इसी format में आकर छोड़ देंगे। 6 pi minus 9 root 3 upon 2. Correct? Got it. चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। सही है। इसके मुझे आंसर्स बता दें मिलके एक दफा और साथ दोबारा है। क्या कह रहे हो, फर्स्ट की वैल्यू क्या है? आइए, एक्स की वैल्यू इज 5.2। हम्म, नहीं नहीं, फाइंड द एरिया क्या था? 320।
ओके नेक्स्ट। नहीं नहीं नहीं, पाई अलग चीज होती है। पाई अगर लिखा हो तो यू डोंट हैव टू मेंशन आरएडी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इफ पाई इज ऑलरेडी देयर तो फिर आपको आरएडी लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्रीज कभी भी पाई में नहीं होते। बट अगर पाई नहीं लिखा हुआ तो देन यू हैव टू मेंशन आरएडी, बिकॉज अगर ये सिर्फ 2.5 लिखा होगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2.5 डिग्रीज भी तो हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो है ना। आई मीन होते नहीं है इतने छोटे डिग्रीज, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते। 2.5 डिग्रीज इज एन ऑप्शन। हाँ लेकिन ये है कि हो सकता है ना। अच्छा देखें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ, radius 8 centimeters. The points A, B, C, and D lie on the circumference of the circle such that AB is parallel to DC. The length of the arc AD is 4 centimeters and the length of the chord is also given. Find in radians the angle AOD. अब पहले वो AOD की वैल्यू पूछ रहे हैं। अच्छा अगर AOD पूछेंगे, I would try to connect O with D, so that will give me the value as 8. ये भी 8 आएगा obviously because radius की value आ रही है। तो अगर आप A और D निकालना चाहेंगे तो ये तो बहुत इजीली आ जाएगा। आर्क लेंथ गिवन है 4, रेडियस गिवन है 8, हमें थीटा निकालना है। तो S हो जाएगा 4, R इज 8, थीटा इज 1/2। अच्छा then it says hence show that angle DOC is equals to 1.43 radians. So we have to show that that angle is equals to 1.43. Acha, now understanding these values, देखिए ये वैल्यूज हैं, हमारे पास एक एंगल तो आ गया है। So I'm just looking at that angle and considering के is there any value that we can calculate, any chance that we can calculate the other angle जो दूसरा given है, मैं वो calculate कर सकूं। And then if I can subtract the two and then because जो हमारे पास एंगल बना है वो एंगल तो हमारा राइट हैंड साइड पे भी यही होगा ना, सेम एंगल हो जाएगा। सो इफ दैट इज थीटा then obviously this is also theta. So that makes sense, ठीक है वो बात समझ आ रही है। But I am just thinking about कि if that value is given as 4 और हमारे पास, अच्छा उन्होंने हमें AD की लेंथ बता दी है and they have also given us the length of the chord AB। जो chord AB है उसकी लेंथ given है 15, आप यहाँ नोटिस करें लिखा हुआ है this is 15। That means कि जो chord की लेंथ है, अगर मैं ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर दूं, let's just see this, this should be 7.5 and this should also be 7.5, is this correct? Because पूरी लेंथ 15 है ना। सो अगर आप बिल्कुल मिड से ब्लू लाइन बना दें, दैट शुड बी राइट हैंड साइड 7.5, लेफ्ट हैंड साइड भी 7.5। ठीक है, बाय यूजिंग दिस कैन वी कैलकुलेट दिस एंगल, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई कैन कैलकुलेट द डार्क एंगल, ये पूरा मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ दिस पार्ट। ये कैलकुलेट करने के बाद आई विल सब्ट्रैक्ट दिस थीटा फ्रॉम इट टू गेट दिस आंसर एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 2। उनको ये चाहिए ना ए डीओसी। देखिए डीओसी कैलकुलेट करने के लिए आई ड्रॉन अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। आउट ऑफ दिस आई विल सब्ट्रैक्ट दिस थीटा, ठीक है, दैट विल गिव मी दिस आंसर। सिर्फ ये शॉर्ट आंसर मिलेगा। अच्छा द डीओसी पार्ट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट वो ये होगा, तो सिमेट्रिकल है ना, लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। समझ आ रही है बात, एंगल किस तरह से निकल रहा है। हाँ सेक्टर तो डीओसी बन जाएगा बाद में, बट अभी के लिए तो
देखिए जो उनकी एंगल रिक्वायरमेंट है वो ये है ना, उनको ये चाहिए, बट ये हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना। मैं अभी वर्किंग करूंगा ऑन दिस एंगल, इसमें से मैं थीटा माइनस करूंगा, दैट विल गिव मी दिस। ये पार्ट निकल आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो पूरा आंसर आ जाएगा। मुझे ये चाहिए ना, समझ आ रही बात? अच्छा अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं जल्दी से। सो स्टार्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। साइन इनवर्स 7.5/8 का आंसर बताएगा क्या आ रहा है, रेडियंस। ये फुल एंगल आ गया है। थीटा नहीं कहते से कुछ, चलने सही है, थीटा ही कहते हैं। सो 1.22। नाउ आउट ऑफ दिस 1.22 आई विल रिमूव दिस हाफ। मैं हाफ रिमूव कर दूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा, दिस इज द वन दैट आई एम लुकिंग। And then this gets multiplied by 2. That's the idea. ये चेक करें, this answer should be 1.43 radians. One point two two minus half multiplied by 2. But that won't be... ये 1.43 तो नहीं आ रहा होगा, चेक करें। नहीं आ रहा होगा, आएगा 1.22 minus half is 0.72 and then multiply by 2. सही है। अच्छा, after this it says find the perimeter of the shaded region. यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? Now finding the perimeter of the shaded region. Now the good part is, ये समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है मुस्तफा? अच्छा, नाउ द गुड पार्ट इज, लेकिन दिस इज ऑल्सो 4 क्योंकि ये सब सिमेट्रिकली है ना। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये फुल लेंथ तो 15 है जो ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 15। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ओ डी और ये ओ सी, एक वैल्यू है ओ डी, एक वैल्यू है ओ सी, ये वैल्यूज हैं। आप अब ये पूरा एंगल निकाल चुके हैं, दिस इज 1.43, ये हम सब निकाल चुके हैं। नाउ दिस इज 8 and this is 8. So by using the cosine rule, I can calculate the length of DC. I can calculate this length. मैं ये calculate कर लेता हूँ।
फिर जो आंसर आएगा वो निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। जी 10.5। सो जो वैल्यूज बनेंगी, या मैं वैल्यूज की बात कर लेता हूँ। इट्स 4 + 4 + 15 + 10.5, ये बता दें क्या आ रहा है, 33.5। अच्छा, आफ्टर दिस दे आर आस्किंग फॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो फाइंडिंग द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, या देखें, एरिया निकालने के लिए आई वुड सजेस्ट, बट वो हमें दो उसमें माइनस करना पड़ेगा। पहले मैं करूंगा एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे आपके पास ये सब रह जाएगा। ठीक है, बट इसमें से भी हमें वाइट पोर्शन नहीं चाहिए। देन आई विल डू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उससे सिर्फ वाइट रीजन रह जाएगा। फिर जो आपने प्रीवियस एरिया बच गया था, उसमें से ये एरिया माइनस करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पार्ट में व्हाट आई विल डू इज आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, और उसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमूव करूंगा। So my first target is to be left with this area. This is the first target. अच्छा, ये पूरा एंगल हम कैसे निकालेंगे? जी। हम्म। पाया स्क्वायर कैसे यूज करेंगे? नहीं, बट वो दैट्स नॉट अ सेमी सर्कल ना, इट्स जस्ट अ कॉर्ड। सेमी सर्कल के लिए इट हैज टू बी कनेक्टेड टू द सेंटर। यही तो मसला है। ये पूरा एंगल है 1.22, ये भी 1.22 है। ये अलग निकलेगा। नेक्स्ट है फिर ये 1.43 वाला पार्ट। आई एम ट्राइंग टू वर्क विद दिस। देख लें प्लीज।
अब मैं इस पे वर्किंग करूंगा सो एज टू गिव मी द आंसर फॉर दिस पार्ट। सही है। अब ये स्मॉलर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ आई एम वर्किंग विद द स्मॉलर पार्ट। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं इस पे वर्किंग करना चाह रहा हूँ। उसके लिए द थीटा वैल्यू विल चेंज। इट बिकम्स 1.43। Now, whatever answer we get through these two equations, फिर हम उन दोनों को subtract करेंगे। Because आपको first equation ने answer दिया है for this complete part. First expression will give you the answer for this. Second expression will give you the answer for this. And then we'll subtract the two. समझ आ रही है बात? तो आप पहले first वाले केस पे वर्किंग करें this, then this. उससे ये आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस में this and this। उससे ये आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आंसर मिल जाएगा आपको वेरी इजी। हम्म। हम्म। तो लाहौर में मसला हुआ था ना, वो यहाँ पर तो नहीं हुआ ना issue? हाँ। Alright, so once you subtract these values, so we get the answer as 43.35 centimeter square. That is the area of the shaded area. Clear है यहाँ तक? बस ये लिख लो, स्टेटमेंट फिर आगे चलते हैं। चलें भाई इस वाले पर आ जाए। एक दफा वैसे ही आप लोग ट्राई करें, अगेन समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा देता हूँ। ट्राई दिस।